Hello everyone, welcome to Maluka IAS and my name is Vijay Kumar and I'm an expert in geography who have a teaching experience of more than 5 years and I have appeared for CSE interview thrice. So I started teaching geography optional since the last 5 years and I have guided many aspirants to crack this examination. So this particular video is to help you aspirants to know about what's the importance of geography optional is, because many aspirants as of now even they are in a confused state, either to take geography, either to take history, or either to take sociology, anthropology, or mathematics, whatever it may be. Clear? So with this video I'll make sure that I'll be helping you to understand how geography can be very important in your UPSC preparation, and I'll also help you in understanding what are the core areas which you have to focus upon in geography. So if you want to learn geography optional, it is me, Vijay Kumar, along with Mohammad Rizwan sir, who will be helping you in your geography optional from Maluka IAS. So geography optional is dealt by two experts. It's not like it depends upon only one expert, because what we actually believe is by two perspectives given by two educators in the same subject will be beneficial for the candidates to grow more and more and to get more and more score in your optional aspect. Because optional becomes highly important for you in your UPSC preparation, because it alone contributes for 500 marks. So negligence in optional can make you never crack this examination. So that's why it is time for you to decide either to go for geography or to go for any other aspect. Clear? So, and myself, I'll be taking up the physical geography portion, and Rizwan sir would be helping up in human and economic geography portion. So within the optional, you have two papers, paper 1 and paper 2, and part 1 of paper 1 and part 1 of paper 2 would be dealt by me, and part B of both the papers are dealt by Mohammad Rizwan sir. Clear? So why geography is considered as one of the best options? And can we score 300 marks in geography optional? This is most important doubt which an aspirant gets, because geography plays a key role in your general studies. Even it is highly influential. So let me say, if you read geography optional, are you going to score 300 plus? Yes, absolutely. So how come you can score 300 plus? With 4 variabilities. First point is you have to have self-interest in reading geography optional. ये ऐसा नहीं कि हम फोर्स कर दिए geography optional लेने को and अब geography optional लिए. ऐसा नहीं होगा. पहला तो आपका खुद का self-interest होना पड़ेगा. First point is, for any optional to be scored, it is self-interest. सेकेंड जो भी पॉइंट आएगा वो आएगा गाइडेंस. क्लियर? गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर और अ फैकल्टी. थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. एंड फोर्थ वन, टेस्ट सीरीज विच यू कैन राइट अपॉन. क्लियर? If these 4 things are fulfilled, then you can consider any optional as yours. So first तो पहला self interest रहना पड़ेगा, उसके बाद सही अच्छा गाइडेंस मिलनी चाहिए, and third one is material, fourth one is test series. अगर ये 4 चीज completely fill हो जाए ना, तो 300 मार्क से ज्यादा आप आराम से स्कोर कर सकते हैं ऑप्शनल ज्योग्राफी स्पेशली. और सेल्फ इंटरेस्ट तो आप डिसाइड कर लो, गाइडेंस तो हम दे देंगे.
Like me and Rizwan sir will be walking along with you until you crack this examination. And we will provide you the material, exact stuff where from to read. And we will also provide the test series for you. So with this, your optional would be beneficial. And now I'll speak about importance of geography optional. See, for example, let's say the entire UPSC mains preparation जो भी है वो 1750 मार्क का है. हम ऐसे अंदाज में कैलकुलेट करेंगे अगर ज्योग्राफी पढ़े तो what are the things which we are going to benefit upon. So frankly speaking, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़े तो 500 मार्क कवर होंगे. दिस इज पॉइंट नंबर 1. एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ने से 500 मार्क कवर होंगे. एंड ये ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ने से आपका जो भी जीएस पेपर 1 में जो भी ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें वर्ल्ड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया विद स्पेशल रेफरेंस विद इंडिया, and factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary industries, and also geophysical phenomena like volcanism, earthquakes, tsunamis, cyclones, etc. And geographical features and its locations, geographical features and critical changes in geographical features including flora and fauna, along with ice caps and factors responsible for it. ये जितना भी सिलेबस है ना जीएस पेपर 1 में जो भी आप जनरल स्टडीज में देखे हुए वो पूरा ऑप्शनल में कवर हो जाएंगे. तो आपको जीएस का जो भी ज्योग्राफी सिलेबस है उसको टच करने की जरूरत नहीं है. सो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ टचिंग द एस्पेक्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज ज्योग्राफी. तो उसमें अगर ज्योग्राफी हम पढ़ लिए तो 120 मार्क तो कवर हो गए. फ्रॉम जीएस पेपर 1 में तो लाइक तकरीबन 100 से लेके 120 मार्क तक क्वेश्चन आएंगे जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी वाला पोर्शन से. ठीक है. एंड वैसे जीएस पेपर 2 में चेक करें तो वी हैव पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन. तो उसमें खास कुछ ज्योग्राफी का बात नहीं बनता, बट फिर भी इंटरनेशनल रिलेशंस में वो जो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो तो कुछ 5-10 मार्क आ जाएंगे. वैसे लाइक वी डोंट हैव एनी कनेक्शन ऑफ ज्योग्राफी और देयर. ज्योग्राफी नॉलेज इनडायरेक्टली हेल्प्स. अब बात करेंगे जीएस पेपर 3 की. जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें एग्रीकल्चरल इश्यूज है, इंडस्ट्रीज हैं. क्लियर. एग्रीकल्चर बोल के सेपरेट आपको 5 लाइन का सिलेबस दिया हुआ है. इंडस्ट्रीज हैं एंड अलोंग विद दैट वी ऑल्सो हैव इकोलॉजी, एनवायरमेंट पोर्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो भी है वो सारे इंक्लूडेड हैं. तो तकरीबन कम से कम मेरा अंदाज अगर लगाएं तो 100 मार्क उसमें कवर होंगे ये ज्योग्राफी नॉलेज से. तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में 500 कवर हुआ, पेपर 1 जीएस में 120 कवर हुआ, जीएस पेपर 3 में 100. वैसे जीएस पेपर 4 में एथिक्स हैं तो एथिक्स में वैसे ज्योग्राफिकल नॉलेज का जरूरत नहीं है. एंड बात हम अब करेंगे एसे की. समवेयर लाइक अपने को 2 एसे लिखना होता है. समवेयर अराउंड वी हैव टू राइट 2 एसेस. 125 मार्कर का जो भी 2 एसे आएंगे उसका 2 एसेस लिखना पड़ेगा. सो ये 2 जो भी एसे हैं दैट 2 एसेस में एक एसे एटलीस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आप पुराना जो भी एसे पेपर है वो खोल के आप एक बार देख लीजिए तो आपको ये लगेगा कम से कम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ज्योग्राफी से एसोसिएट हुए एक एसे मिल जाएंगे. तो एसे तो 125 का है तो मैं फिर भी लाइक 80 ही लगा रहा हूं, क्योंकि 1/3 पोर्शन तो ज्योग्राफी का आएगा ही आएगा. तो अभी आप कैलकुलेट कर लो. 500, 120, 100, 80 तो पूरा कुल मिला के 800 मार्क्स. है ना. अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़े तो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर छोड़ सकते हैं एंड एसए में कंटेंट बढ़ जाएगा. तो इसकी हिसाब से समवेयर अराउंड 800 मार्क्स की कवरेज बनेगी आपको. 800 मार्क्स का कवरेज है
एंड बाकी आप हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एथिक्स, जो भी पढ़ना है पढ़ लो। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से आपको 800 मार्क आ रहे हैं, तो हाउ कैन यू लीव दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल ऑफ नॉट मेकिंग योर ऑप्शनल? अगर सेल्फ इंटरेस्ट है तो इस पे और इंटरेस्ट बढ़ाइए और ज्यादा कोशिश करिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल को और कैसे आगे बढ़ाए एंड इसमें 300-350 प्लस लाने की कोशिश कैसे करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसमें पॉइंट ये बनेंगे कि बहुत सारे मार्केट में आपको मटेरियल मिल जाएगा, बट उस मटेरियल से आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको टेक्निकल चीज समझना होता है। क्योंकि एक एरिया ऐसा है ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी, उसमें एप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, स्लोप डेवलपमेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में अगर आपको समझना है, क्लियर, like you have to have a greater idea about it. If you want to have a greater idea, you have to once go and learn from a person who is an expert in geography. And we both, myself and Rizwan sir, we are in this teaching field. Like myself, I have been in this teaching field since the last 5 to 6 years, but Rizwan sir, he is in this teaching field since the last 15 years, guiding many aspirants. So we experts in geography will be putting each and every knowledge of geography into your mind, so that you can't leave even a single question in your mains paper when you write the optional. So हम geography optional जब भी पढ़ाते हैं, more than 300 hours की lecture हम लेंगे, and ये 300 plus hour का lecture जो भी होगा, that particular 300 plus hours में पूरा का पूरा completion of syllabus करेंगे। Every portion, every corner of the syllabus would be calculated. Each and every pointed notes would be given in the class itself. इधर हैंडआउट दिया जाएगा, नहीं तो डिक्टेट किया जाएंगे। इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्टेशन में दे देंगे, नहीं तो हैंडआउट दे देंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी इटसेल्फ वुड बी इन्वॉल्व्ड मोस्टली इन डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। हम ज्योग्राफी को इतना आसान बना देंगे ताकि आप ये नहीं लाइक ये कोशिश करके भी ये कर नहीं सकते कि लाइक यू हैव नेवर माइट हैव थॉट इट बिफोर दैट यार ये ज्योग्राफी इतना इजी बन गया क्या। सो इतना इजी बना देंगे ज्योग्राफी को आपके लिए, तो आप खुद आके हमें बताएंगे यार ज्योग्राफी बहुत इजी हो गया। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपर्ट्स डू इट फॉर यू, एंड रेस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि असाइनमेंट्स जो भी हम देंगे, क्वेश्चन कुछ हम देंगे, लाइक एज एन असाइनमेंट आपको खुद लिखना है एंड आप वो लाएंगे, हम वो करेक्ट करेंगे, एंड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगा, एंड टेस्ट सीरीज में आप ये बात को लाइक एवेल्युएट कर सकते हैं। सो अलोंग विद दिस वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंटेम्पररी थिंग, बिकॉज ज्योग्राफी पढ़ना यही नहीं कि ज्योग्राफी इज ओनली ए थिंग विच यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, but it is also a thing which you have to explain more, which you have to think more, which you have to integrate more. So perfect understanding of the technical things and integration of geography syllabus with the contemporary issues for best result out of this particular geography optional is what we are trying for. सो आप लोग जितने भी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो यू कैन कम टू मलुका IAS टू ज्वाइन विद अस टू क्रैक सिविल सर्विसेज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन विद द क्वायरीज यू कैन ड्रॉप अ मैसेज और यू कैन जस्ट कॉल टू द इंस्टीट्यूट सो दैट यू कैन पिक द क्वायरीज अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, and geography will be your life when you are with us. Thank you.